So here we are. This is about jobs, jobs and future, how jobs occur, how opportunities occur, and all things in short, what we can uh, perceive about jobs. So we'll start with the start again. Um, See, these are few era. See, I believe that you are school students, and for school students, even 2007 is a long back period. So, can you see what were the trends at that time? The hot selling things were cars, bikes, soft drinks, credit cards, real estate. Of course, it is still there. The jobs were for software developers. Consumer electronics was hot, and mobile apps were being made in abundance. So this was the trend in 2007. Now, anybody would have a dream that they get placed in a company like Coke or Pepsi, but not anymore. When we see trends in 2017, or the trend which will continue from now through 2024, which is a perceivable future, so here we don't see that people are uh, crazy about having jobs in Pepsi or Coke or in selling cards, because that will associate them with big names like American Express or such banks. So they are not crazy about it. Instead, what their the trends are, they are into companies like Byju's, paying them 10 lakhs per year, 12 lakhs per year. They are into innovation. They are into manufacturing for Industry 4.0. See, these are the trends. Now, certain things from these may sound alien to you. So it's not necessary that you know all things, but what I mean to say is trends change and the nature of jobs change. And that is what we have to understand, that if today there's a trend going, it is going to change tomorrow. So we have to perceive our future with some solid basis, so that we can drift from one place to another. Meanwhile, we have to acquire more skills, more knowledge. So it's a constant learning process, and with that process we also shift. So now this will be more clear to you when we understand the next part of it. I really don't know. You are more comfortable in Hindi or English? Can somebody respond to that? Is there any way that I can get some feedback on this? Uh, can I have a feedback on? I'll put this on a poll. Should we continue in English or Hindi? Yes. Fine. Fine. Okay. Now this is a picture that you should learn by heart. Anybody who is going to do anything about their careers. Now, this does not mean only jobs. If you want to go for a startup, if you want to go for something which is a performing art, then you have to learn this table by heart. As soon as you write in your Google search 17 SDGs, and you'll get this picture. The same colors, all these 17. What are these 17 SDGs? These are Sustainable Development Goals. Now, this applies to the whole world. आप ये समझ लें कि इस समय दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितना भी काम, जो भी इन्वेस्टमेंट्स और जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं, वो इनमें से किसी एक के दायरे में आते हैं. These are the 17 parameters.
Now, who has developed these 17 parameters? It is the United Nations Organization, UNO. They have surveyed over 193 nations, which is almost the whole world. And after that survey, they came up with the requirements of the whole world as no poverty, which is the first one, zero hunger. Third is good health and well being. Now, let's come to 11, sustainable cities and communities. If you go to seventh, it is affordable and clean energy. Just pick anyone. It sounds very simple, but when we translate into actually going for it, like zero hunger, that means food for everybody. Now, we cannot imagine it, but there are a lot of people, thousands and lakhs of people who do not have two times meals in the world, and that's how it has come up. And likewise with clean water, somewhere here there's about clean water. And for clean water, let me tell you, China is not one of our best friends, at least. They are investing more than 18,000 crores in India for clean water. And the whole world is working on how to generate sources for clean drinkable water. And there's a raw saying going that the fourth world war will not be for anything else but water. And you already see that sometimes we have a rift with China. What is that Doklam rift? Principally, it is because of a river which is coming from China to us, and there are problems with that. Similarly, we have on the border, on the Pakistan side, again there are some problems with Pakistan because of a river which is going from India to Pakistan, and it's all about water. So, see, why I'm telling all this to you? Because unless we appreciate the cognizance of all these 17 SDGs, we cannot know about the types of jobs which can be occurring. ये सारा इंटर रिलेटेड है. सारी कंपनीज इन्हीं के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी, आप कोई टेक्नोलॉजी ले लीजिए, वो आगे जाके किसी एक पे फोकस करेगी, उस पर लिंक करेगी, वो इंटरमिटेंट है, वहां से किसी एक पे जा रही है वो. आप इनमें से अगर आप अपना फ्यूचर किसी एक में डिसाइड करते हैं कि ओके आई विल गो फॉर क्लीन एनर्जी, नाउ वेयर डू यू स्टार्ट? यू विल स्टार्ट विथ डूइंग समथिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसके जरिए जाएंगे आप आगे, या आप सोलर पावर के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज नाउ यू हैव अ टारगेट कि मुझे कहाँ जाना है. सिमिलरली क्वालिटी एजुकेशन अगर ये है, तो आप अपनी पढ़ाई को इस तरह फोकस करेंगे कि एक फील्ड चुनेंगे जिसमें आप क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर सकें आगे जाके. से इन लॉ, now you will be clear with legal studies. If you have an interest in law, then you'll start with law, and at some point you will be delivering quality education in law. So this is how this table is going to help you in deciding, because पूरा world अभी जो भी काम करता है वो it is around these. So you just Google it, 17 SDGs, and you will find it. Now we'll know more about it here. Converging it down to simpler components, these are only 6. You can have 60, you can have 600, but industries, these are the industries which are going to give you the maximum number of jobs, the highest paying jobs, because this is what we are perceiving for the future. इसमें मैंने ग्रुपिंग्स किए हैं, जैसे हेल्थ केयर, फार्मा एंड बायोटेक. ये मिलते जुलते फील्ड्स हैं. These are some fields which are interrelated. And then we have engineering and construction, online education and degrees. See, you can read all what is here. What I mean to say is that if you are making your future into any of these, say for example, agar communication, networking, content and business intelligence, so where do you start? You start with building up your language.
आपको कम्युनिकेट करना है तो एक मीडियम चाहिए. मीडियम इज योर लैंग्वेज. Language can be any. Communication does not necessarily mean English communication. If you want to communicate in Hindi, network in Hindi, or any other language like French or Russian or whichever. So if you want to develop content in that language, you have to start somewhere, and that is with the language. So अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश में नेटवर्किंग बना सकते हैं. देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया व्हीकल्स, आप उसके थ्रू नेटवर्किंग बनाते हैं. कंटेंट, यू ऑल नो, कंटेंट इज रिटन कंटेंट, कंटेंट इज वीडियो कंटेंट, आप रोज देखते हैं कंटेंट. एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, जो आजकल एनालिटिक्स की बात होती है कि एनालाइज करते हैं कि किस तरह के लोगों ने क्या देखा, कितना देखा, कौन से लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं, किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स क्या समझना, खाना पीना पसंद करते हैं. सो ऑल दैट एनालिटिक्स, this comes through business intelligence. So this is one group. Another is like agri products, food and water, packaged foods. ग्रो करने से एग्रीकल्चर को और उसका फूड बना के फूड प्रोसेस करने से लेके और क्लीन वाटर तक, ये सारा एक ग्रुप में मैंने यहाँ रखा है. बट दिस इज द फ्यूचर, बिकॉज सारे की शॉर्टेज है. ये these are the fields which are going to grow, and these are the fields which are going to offer you the best of the jobs in future. Now, multiple disciplines at one place, what does this mean? इनमें से कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो, see here are the 6 fields which I had shown you. मैंने ग्रुपिंग करके बताए हैं आपको. हेल्थ केयर, फार्मा एंड बायोटेक, ये अलग अलग हैं लेकिन एक जगह रखें क्योंकि मिलते जुलते हैं. ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिग्रीज, दिस इज गोइंग टू बी द पिक्चर ऑफ हैविंग डिग्रीज. बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जो 6 मंथ्स चलेंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स 3 महीने में ऑनलाइन स्टूडेंट्स करेंगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से. धीरे धीरे ये जो लंबी डिग्रीज हैं, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, हो सकता है कुछ लोग ये करें. फंडामेंटल डिग्रीज का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन सपोज कोई व्यक्ति है जिसको एक सी के अंडर मरीन एनिमल्स के बारे में जानकारी लेना है, वेल्स की स्टडी करना है. वेल्स की स्टडी करने के लिए उसको फोटोग्राफी आना चाहिए, उसको मरीन ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, और 3-4 अलग अलग इस तरह की केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए. नाउ 1 डिग्री विल नॉट बी सफिशिएंट. फिर ऐसे लोग क्या करेंगे? दे विल गो फॉर अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन फोटोग्राफी, दे विल गो फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रॉपर डिग्री इन मरीन इंजीनियरिंग, and they'll do something for chemistry, which can be a like 3 months or 6 months certificate course, and then they can go with authority for that kind of work. Everything in this, like agri products, food, water, all whatever is here, this all requires multidisciplinary knowledge. Now you can have one basic degree and acquire some short certificates and degrees to give you that kind of competence. ये सारा मैं आपसे जॉब्स के रेफरेंस पे कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में जॉब्स में आपकी रिक्वायरमेंट वैसी नहीं रहेगी कि आपने बीएससी किया या बीई कर लिया, नाउ यू आर गुड इनफ. आपने तो जावा प्रोग्रामिंग आती है आपको, बट जॉब्स विल नॉट बी फॉर जावा प्रोग्रामिंग. जॉब्स विल बी रिक्वायरिंग यू टू मेक एन एप्लीकेशन. जॉब्स इस तरह के हो सकते हैं कि आपको यूजर इंटरफेस बनाना है. तो यूजर इंटरफेस के लिए क्या जरूरी है वो आपको सीखना पड़ेगा. उसमें थोड़ा आर्ट का सेंस होना पड़ेगा. अगर नहीं है तो आपको डिजाइन का एक कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का. सो नाउ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हैज टू बी अडॉप्टेड, क्योंकि जॉब्स की रिक्वायरमेंट ही वही है. इंटरडिसिप्लिनरी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर सकते हैं? जिनके यहाँ बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में, जैसे मैं सेज यूनिवर्सिटी से हूँ, हमारे यहाँ हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि वी हैव सम शॉर्ट टर्म कोर्सेज. सो नाउ इफ वी आर प्रिपेयरिंग दीज स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर टाइप ऑफ जॉब्स विच आई जस्ट मेंशन्ड, तो अगर कोई इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और उसको हम एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स में, से फॉर एग्जांपल एक बीज पर्टिकुलर इंटरवल्स पे बीज डालने की ऑटोमेटिक मशीन बनाना है, तो उसको कुछ तो एग्रीकल्चर का भी अंदाजा होना चाहिए कि कितनी डेप्थ में, कुछ उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए.
and somebody from electronics and communication has to set the whole machine moving in a particular system. तो अब ये मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट कहाँ से, अगर लड़का किसी एक जगह पे काम कर रहा है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, he will not be able to do it completely there. But when it is a university which is offering multidisciplinary courses, then they have a liberty to do some such thing which can lead them to particular a solution for the society or the requirement of the society or the requirement of a particular industry. तो उसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर करियर्स. नाउ हियर इज व्हाट एक पर्सपेक्टिव है ये, जिसमें एक एम्प्लॉय के लिए क्या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो सकती हैं. इसमें आप देखें कुछ स्किल्स तो ट्रेनिंग मांगती हैं, जैसे कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, इसमें ट्रेनिंग होगी, बिहेवियरल ट्रेनिंग होगी, डिज़ाइन इनोवेशन की ट्रेनिंग होती है, एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग होती है, एनवायरनमेंट एंड न्यू लर्निंग. व्हाट इज़ योर एनवायरनमेंट, जिस तरह के जॉब में आप जाना चाहते हैं उसके एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बारे में सीखने को मिलता है. बट the central part does not require any kind of training, but unless you have this part, you are not a perceived employee. इसमें आप देखें क्या क्या है, being on time, work ethics, effort करना, किसी भी काम के लिए एक अच्छा एफर्ट करना, ये आपको देख के आपको काम देगा कोई भी समझ लेगा. इंटर्नशिप्स के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ यही सब देखते हैं. बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, एनर्जी लेवल्स आपके कैसे हैं, आपका एटीट्यूड क्या है काम के प्रति, पैशन फॉर वर्क, एंड आर यू ट्रेनेबल, बिकॉज वॉट एवर दे आर डूइंग, योर एम्प्लॉयर्स आर डूइंग, योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स आर डूइंग, दैट इज गोइंग टू चेंज इन फ्यूचर. सो इफ दे आर गोइंग टू चेंज, यू हैव टू चेंज, एंड अनलेस यू आर ट्रेनेबल you won't change. So you have to be trainable. And then fundamental skill of the core. सपोज आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया है, तो जर्नलिज्म के साथ में आपका फोटोग्राफी है, ये भी आपने किया, आपने राइटिंग का एक कोर्स किया, ये आपका कोर है ना. इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स डील करते हैं, इफ़ यू आर इनटू जर्नलिज्म उसके बारे में पता होना चाहिए. तो ये आपके कोर के साथ में, अगर जर्नलिज्म को एज एन एग्जांपल लें तो आपको उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, यूनिट्स के बारे में, उनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, जो कोर में आपने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है. एंड वेरिएशन इन इफेक्ट, अगर आपकी समझ लीजिए कि आपकी फोटोग्राफी कमज़ोर है तो उसका क्या असर होगा, आपकी अगर राइटअप कमज़ोर है तो उसका क्या असर होगा, अगर आपका राइटअप स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल विद द ऑडियंस, तो उसका क्या इफेक्ट होगा. यू शुड नो ऑल दिस. सो फंडामेंटल स्किल्स ऑफ कोर. से अनदर एग्जांपल, अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, आई विल कम टू आर्ट्स. आई कैन सी दिस पोल, about 46% students are from the arts field. I'll refer arts as example in coming couple of minutes. Now इसमें जो भी आपका कोर है, चाहे आर्ट्स हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, उससे रिलेटेड इनमें से कोई भी टॉपिक को आप रिलेट करके उससे देख सकते हैं. बेसिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कैलिब्रेशन, एप्लीकेशन, वेरिएशन इन इफेक्ट, एंड उसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं आपके पास. इनमें से किसी का भी इफेक्ट आता है तो ये मैं आपको अभी बेसिस बता रहा हूँ कि किस तरह के बेसिस के साथ में जब आप जाते हैं. नाउ वॉट एवर वी हैव डन सो फार इज, एक तो आपको मैंने ये बताया कि वर्ल्ड किस तरफ मूव कर रहा है, दूसरा मैंने आपको बताया कि किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं, फ्यूचर के जॉब्स में. तीसरा हमने ये देखा कि किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जिनमें ज़्यादा और हाई पेइंग जॉब्स आने की उम्मीद है आने वाले समय में. दिस विल बी द इंडस्ट्रीज विच विल बी पेइंग हाई. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्ट्स. वन आर फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं. दूसरे आर्ट्स एज ए सब्जेक्ट जब आप लेते हैं तो इस पर ध्यान उतना नहीं देते हैं. आई जस्ट नरेट इट
अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स, मीडिया और जर्नलिज्म की बात करते हैं तो फिर आर्ट्स का मतलब आपके लिए रहेगा म्यूजिशियन, डांसर, एक्टर, फिल्म एक्टर, टीवी डायरेक्टर, टीवी फिल्म प्रोड्यूसर, कैमरा ऑपरेटर, साउंड इंजीनियर, राइटर, जर्नलिस्ट और एडिटर। और अगर हम आर्ट्स, क्राफ्ट्स और डिजाइन वाले आर्ट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर, इलस्ट्रेटर, ज्वेलरी डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट एंड इंटीरियर। आप, दिस इज लिमिटलेस। किसी भी फील्ड में जॉब्स तो बहुत हैं। आप सी, यू शुड हैव द एट्रीब्यूट्स, देयर इज नो डेथ ऑफ जॉब्स। ये बात ही गलत है कि जॉब्स नहीं है। लोगों का मन नहीं होता है काम करने का, या उनको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, एंड फॉर दैट वी आर देयर। हम यही काउंसिल करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, हम यही समझाते हैं, पर उसके लिए हमें उनके साथ बैठना पड़ता है। एक एक आप इस बात को समझिए कि आपकी क्लास में अगर आपका नाम अशोक है, अशोक नाम के 3 बच्चे हैं आपकी क्लास में, तीनों का परसेंटेज भी एक हो सकता है, आपका सब्जेक्ट भी एक हो सकता है, लेकिन तीनों के इंडिविजुअली जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। एक अशोक गुस्सैल वाला है, एक अशोक बहुत कम बोलता है, शांत स्वभाव का है, एक अशोक ऐसा है कि उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये अलग अलग, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक क्लास के बच्चे हैं, एक ही परसेंटेज है, सो नाउ दे कैन गो फॉर अ सिमिलर थिंग। नो, डजंट हैपन, डजंट डू जस्टिस टू देयर फ्यूचर। तो फिर यहाँ हमें उनके साथ बैठ के डिसाइड करना पड़ता है कि जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनके इंटरेस्ट है, पैशन है, उसके साथ, और फ्यूचर में जो इंडस्ट्री जिस तरह टर्न ले रही है और आज जो स्ट्रेंथ्स उनके पास हैं उनको जोड़ के वो हम उनको किस तरह का जॉब सजेस्ट करें, एंड दैट इज व्हाट प्रिसाइजली वी डू। Now, this is another slide which tells you about what will be the higher paid jobs, what can be the medium paid jobs, and what can be the lesser paid jobs. तो देखिए इसमें जो higher paid jobs हैं वो उन लोगों के लिए रहेंगे आगे जाके जिसमें हाई सेंस ऑफ इनोवेशन, जो लोग इनोवेट और क्रिएटिव नेचर के हैं वो ज्यादा पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। यहाँ मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये कोई चेंज ओवरनाइट नहीं होने वाला है। दिस विल टेक 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, किसी चीज में 5 साल में होगा, बट दिस चेंज इज ऑन। जो 3 साल पहले होता था वो अब नहीं हो रहा है, जो अब हो रहा है वो 3 साल बाद नहीं होगा। सो जॉब्स तो आपके बदलेंगे, तो लेकिन एट्रीब्यूट्स आपके लगभग वही रहेंगे। तो मैं आपसे एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ, और जॉब्स का तो आप जितने नाम कहेंगे मैं आपको बता दूंगा कि किस फील्ड में कितने तरह के जॉब्स आज हैं, पर इसमें से कई जॉब्स लाइक से 40% जॉब्स आज से 3 साल बाद नहीं होंगे। नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन जॉब्स। आप एक बात की थीम ध्यान में रखिए कि वो जो 17 SDGs हमने देखे थे, उससे जो वर्ल्ड बन रहा है उसमें हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दैट वर्ल्ड। अगर आप ये सोच के जॉब में जाएंगे तो देन यू विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि मैं ये बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, आप इंजीनियर तो बन गए, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, आप मैकेनिकल इंजीनियर भी बन गए। अब आप जॉब ढूंढ रहे हैं, हमारे पास में यहाँ, आई एम फ्रॉम इंदौर, यहाँ इंदौर के पास एक पीतमपुर है, पीतमपुर इज एन इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ आज से 6 साल 7 साल पहले 3.5 से 4 लाख के पैकेज पे बहुत सारे इंजीनियर्स हायर होते थे, अब नहीं होते हैं, पूरा ऑटोमेशन में चला गया। नाउ दे नीड ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट्स और ITI, और वहाँ उनकी पैकेज रहती है 11,200 रुपये का स्टैंडर्ड है, 11 महीने का रहता है कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज रिन्यूड। जॉब्स बदलते हैं। नाउ वेयर आर द जॉब्स फॉर इंजीनियर्स देन? उनके यहाँ आज भी इंजीनियर्स हायर हो रहे हैं, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट के अच्छे इंजीनियर, तो कहाँ हायर हो रहे हैं? नाउ दे आर हायरिंग इंजीनियर्स हु, मैकेनिकल इंजीनियर्स, उनको 7 लाख का पैकेज देके ला रहे हैं, 7,20,000 का। दे आर गुड एट डिजाइन, दे आर गुड एट चेंजिंग द प्रोडक्ट। आज जो प्रोडक्ट है उसको कॉस्ट कट करके चेंज कैसे कर सकते हैं। नाउ दीज आर द पीपल हु आर द इनोवेटिव पीपल, दे हैव अ कोर, वो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, बट दे आर इनोवेटिव, दे हैव थॉरोली अंडरस्टूड देयर सब्जेक्ट। समय की डिमांड देखते हुए वो प्रोडक्ट में अगर चेंज कर सकते हैं तो दे आर द हायर पेड वंस। यही आपको समझना है जॉब्स के लिए कि हाउ यू विल बी पेड हायर। इट्स नॉट कि मैंने BSc कर लिया, नाउ आई वांट अ जॉब, ऐसा नहीं है।
आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स. सो हायर पेड जॉब्स विल जनरली बी with high sense of innovation, design, creativity and study of environment. आपको आसपास की समझ होना चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है, आपकी उस लाइन में जिसमें आपने कोर में पढ़ाई की है वो किस तरफ जा रही है और आप क्या उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर द कमिंग अपकमिंग थिंग्स. क्रिएटिंग प्रोसेसेस एंड सॉल्यूशंस और किस तरह के मैन पावर को आप अपने साथ जोड़ना चाहेंगे. चॉइस ऑफ मैन पावर जिनको आप अपने साथ जोड़ें ताकि आप कंट्रीब्यूट कर पाए उस सिनेरियो में. सो दीज विल बी द हायर पेड जॉब. सेकंड जो है मीडियम पेड जॉब, इसमें कोर में प्रोफिशिएंसी रहेगी. आपको जितना बता दिया उतना काम आप कर लेंगे, आप अपने काम में प्रोफिशिएंट हैं, बट इनोवेशन पार्ट इज नॉट सो मच देयर. एडॉप्शन कर लेते हैं आप एक लेवल तक टू द न्यू टेक्नोलॉजीज, आप मेंटेन कर लेते हैं प्रोसेसेस को, लेकिन प्रोसेस नया इवॉल्व नहीं कर पाते हैं आप. दोनों में फर्क है. आज वाले प्रोसेस को आप मेंटेन तो कर लेते हैं एंड दैट्स व्हाई यू आर पेड मीडियम, बट अगर आप इवॉल्व भी कर पाते हैं उसको देन यू आर इन द हायर पेड सेगमेंट. देन मीडियम क्रिएटिविटी एंड यू हैव अ फोकस ऑन कॉस्ट कटिंग विच द मैनेजमेंट अप्रिशिएट्स एंड दिस इज गोइंग टू लैंड यू इनटू मीडियम पेड जॉब्स. एंड द थर्ड वन इज लेसर पेड जॉब्स. इसमें देखिए आप रिपीटेटिव नेचर के जॉब्स हैं, एक ही तरह का काम आपको सुबह से शाम तक करना है. जो कल था वही आज है, जो आज है वही कल भी रहेगा आपके पास. जब तक ये काम चल रहा है ऐसा रहेगा. देन समडे यू विल बी टोल्ड कि भाई अब ये काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा है एंड सिंस यू डोंट नो मच अबाउट एनी अदर थिंग परहैप्स यू माइट लीव एंड फिर आपको नए सिरे से कोई नया जॉब ढूंढना है. अगर आप इस कैटेगरी में जाते हैं, देयर इज वेरी लो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी and emphasis is mostly on physical activity rather than mental activity. So these are the lowest. I don't think anybody would like to go for this. आपके पास बहुत अच्छी चॉइस है. आज आप स्कूल में हैं, आप अपनी सिर्फ, मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ लैंग्वेजेस पे बहुत अच्छा कमांड कर लेते हैं, ग्रामेटिकली अच्छा आप साउंड करते हैं, अगर आप सिर्फ लैंग्वेजेस को, हिंदी और इंग्लिश, मैं सिर्फ इन्हीं दो की बात कर रहा हूँ आपसे, स्टिल यू कैन बैग एन इनिशियल जॉब फॉर एटलीस्ट 25 to 30,000 रुपीज पर मंथ. इससे आप शुरू कर सकते हैं एंड इफ यू आर लिटिल बेटर ऑन दैट, आप थोड़ा सा क्रिएटिव हैं, आप थोड़ा नेटवर्किंग कनेक्टिविटी बना लेते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, देन इन अबाउट 6 months to a year's time you can raise your package to 40 से 50,000 के बीच में आप ला सकते हैं. और मैं ऐसा मेरे स्टूडेंट्स को करते हुए मैंने देखा है, कर रहे हैं, मैंने गाइड किया है. आई एम हियर इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 20 years एंड ये जॉब्स का अब जो है, ये जितना आपके ऊपर है उतना किसी के ऊपर नहीं है. आप कितना पैकेज ले जा सकते हैं ये टोटली आपके ऊपर. ना पुटिंग फ्यू नेम्स ऑन द जॉब्स ऑफ टुमारो, मैंने इसको नियरेस्ट पॉसिबल नाम देने की कोशिश की है. आप मुझसे अगर स्पेसिफिकली कुछ पूछेंगे या इफ देयर इज अ सिस्टम जिसमें आप जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके थ्रू अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आई कैन सेंड यू 50 नेम्स फॉर ईच कैटेगरी. आप पर यहाँ इतना समय भी नहीं है कि एक एक में एक्सप्लेन कर पाऊँ. तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ. जैसे फाइनेंस एंड लॉ में अगर कुछ लोग चाह रहे होंगे कुछ करना, तो अभी टू स्टार्ट विथ यू हैव दीज मेनी बैंक मैनेजर. ये जो बैंक्स के टेस्ट होते रहते हैं साल में एक बार दो बार. ट्रेडर्स हो सकते हैं आप, ट्रेडर्स मीन्स जो शेयर ट्रेडिंग. इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, अकाउंटेंट, financial advisor, economist, you can be a financial solicitor and you can be a politician of course. So that is there. Information technology के बारे में जरूर कुछ लोग सोच रहे होंगे. So in that you have software engineer, systems analyst, database manager, network engineer, IT support executive, web designers, game developers and cyber security analysts. Now likewise we have lot of options in each of the fields. So but bringing it for the future to the nearest possible category of jobs, we have algorithms expert. अगर आप algorithms बहुत अच्छा कर लेते हैं, so this will going to get you lot of jobs in future. Content developer के लिए बहुत jobs रहेंगे future में. Business intelligence expert, इसके लिए बहुत jobs रहेंगे. Marketing expert for the industry 4.0. What is 4.0? Briefly मैं आपको कर देता हूँ, मेरा टाइम अब हो गया है वैसे. इंडस्ट्री 4.0 यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो एक नया तरीका है मैन्युफैक्चरिंग का, ये उसका नाम है. मोटे तौर पे ये समझ लीजिए. इंडस्ट्री 3.0, 2.0, 1.0 किसी ने नहीं सुना.
क्योंकि तब ये नाम दिए ही नहीं गए थे, पर एक ब्रॉड कैटेगरी ये हुई कि इंडस्ट्री जब से भी आई तब पहले कोल एंड स्टीम थी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पे चली, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आया, और अब जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू जो चलेगी इंडस्ट्री, उसका नाम इन्होंने 4.0 दिया। ये कैटेगरी है, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग का तरीका नहीं है, ये दिस ओनली अ कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्री। एंड कोर फाइनेंशियल एक्सपर्ट विथ लेटेस्ट फंडामेंटल्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट इन इंडस्ट्री 4.0। मैन्युफैक्चरिंग इसमें मोस्टली 3D प्रिंटर से होगी, जिसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इनोवेटर्स एंड डिजाइन थिंकर्स, इनकी बहुत डिमांड रहने वाली है। ऑल काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले भी और फाइन आर्ट्स वाले भी, और आर्ट्स जो एज ए सब्जेक्ट जो लेते हैं उनकी भी। बिहेवियरल ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स, ट्रेनर्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहने वाली है, बिहेवियरल ट्रेनर्स की। ऑनलाइन कोर्स बिल्डर्स एंड मार्केटर्स, क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन डिग्री चलेंगी। आप मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट की साइट पे देखिए, आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइट पे देखिए, दे आर ऑफरिंग एनी नंबर ऑफ ऑनलाइन डिग्रीज, एंड दिस ट्रेंड इज गोइंग टू गो हायर। तो अगर आप एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो ये इन लोगों की भी बहुत डिमांड रहने वाली है। अगर आप ये कोर्स बना सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक थिंकविक है, टीचेबल है, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप कोर्स बना के डाल सकते हैं। एंड दिस इज दैट कैटेगरी। एंड ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्वर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, ये तो इवेंचुअली रहेगा, क्योंकि सारे काम करने के लिए इट इज द पीपल हु आर देयर। तो ह्यूमन बिहेवियर के एक्सपर्ट्स जो उसको समझ सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस ला सकते हैं, तो ऑब्जर्वर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, ये इन लोगों की। नाउ दीज आर कैटेगरीज, but if you find that you have attributes for any of these category, you can try your luck in that. Now that is from my side. I am already running, spilling over my time, and we wish you all a brilliant future from Sage University. हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जॉब्स तक लाने की। एंड आप जिस भी जगह पे हैं, जहाँ भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप जिन बातों पे आज हमने आपका ध्यान दिलाया है, इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो यू विल डू वेल। नाउ आई ओपन दिस सेशन फॉर यू टू आस्क क्वेश्चंस। Okay, I already have so many questions here. Nirjar Jain, what are the best jobs for engineering? Okay, engineering में which particular branch you have not mentioned, but I'll give a general reply. See, like in civil engineers, there are jobs for civil engineers, drilling engineers, chemical engineers, mechanical, motor vehicle, electrical, telecom and aerospace engineers. तो इनमें से किसी भी लाइन में आप, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग का पूछा था, अगर आप किसी, फिर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये अभी भी आपका क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, व्हाट आर द बेस्ट जॉब्स फॉर इंजीनियरिंग। आई टोल्ड यू जनरल, तो इंजीनियरिंग में इन कैटेगरीज में आपको जॉब्स मिल सकते हैं। दक्षा गोयल, कैन यू टेल अबाउट द फ्यूचर जॉब्स फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स? ओके, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में you will have to go for mostly government jobs in India. एंड अगर आप इंडिया के बाहर जहाँ जिन यूनिवर्सिटीज़ में इस पर ग्रांट्स वगैरह, कुछ आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलेंगी, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी, तो पहले आपको किसी के साथ में एज एन इंटर्न ज्वाइन करना पड़ेगा, और वहाँ से सीख के यू कैन गो फॉर अ हायर पोजीशन। व्हाट आर द बेस्ट जॉब्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नॉर्मली आई वुड सजेस्ट कि आप कोर जॉब से ही शुरू कीजिए। इफ यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ the electrical vehicles, that will come at a later stage, but you start at a core job, then perhaps you will land up electricals में। जब तक आप कोर से शुरू नहीं करेंगे तब तक आप बहुत अच्छी जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आई सजेस्ट कि आप कोर से शुरू करें। निर्जर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आई गिव यू, आप ग्राउंड क्रू में भी जा सकते हैं, आप फ्लाइट में भी जा सकते हैं। फिलहाल आई वुड नॉट सजेस्ट एनीबडी टू गो फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्योंकि अनलेस यू आर इनटू एयरफोर्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज नॉट डूइंग, ये पूरा जो सेक्टर है, इट इज नॉट डूइंग वेल द वर्ल्ड वाइज। सो बट ग्राउंड क्रू में इंजीनियर्स में जा सकते हैं आप,
फ्लाइट अटेंडेंट में जा सकते हैं. देयर आर जॉब्स विच आर नॉट फॉर इंजीनियर्स, उसमें भी आप जा सकते हैं. सपोर्ट क्रू में जा सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी में ओके, साइबर सिक्योरिटी में किसी ने पूछा है, नो, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट go away before I answer them. There are a lot of questions. Uh, if I am in any way able to compile these, I'll answer them one by one. How to place in core company in mechanical, what is the important skill? The important skills are your fundamentals, which you have learned in 10th class, 12th class. Focus on that. Questions will be asked on that. And do a little bit in designing, 2D, 3D designing, and that will lead you to good jobs in mechanical engineering. Best jobs for software engineers. This is currently today, if you ask me, you can do well in UI UX and what is that next one? No, see, the best jobs for software engineers can be in database management. They can be in UI UX, user interface and user experience. There you have the current trend is towards that. And one more is there. जावास्क्रिप्ट अगर आपने किया है तो दिस विल लीड यू टू लॉट ऑफ गुड जॉब्स. देन हाउ टू गेट प्लेस्ड इन कोर कंपनी, मैंने अभी आपको बताया कोर मैकेनिकल के लिए. स्टार्ट विद डिजाइनिंग सेक्टर. डिजाइनिंग सेक्टर में आपको किसी ऐसी जगह पे see here you have a number 180010073031. If you have questions, you can post them on this number. I'll certainly answer you in full detail. You can re-ask me for anything. Designing sector में there are very few good institutes offering design courses. हमारी इंस्टीट्यूट में भी, हमारे यूनिवर्सिटी में भी है. BDES और MDES. MDES is a later stage. BDES, बैचलर इन डिजाइनिंग, ये अगर आप करते हैं तो डिजाइनिंग सेक्टर में आप यू कैन गो विथ अथॉरिटी. पॉलिटिकल करियर्स के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, पर पॉलिटिकल करियर तो आप किसी भी लाइन से शुरू कर सकते हैं, और अगर लाइन नहीं भी हो तो भी शुरू कर सकते हैं. बिकॉज इफ यू गो थ्रू द सीवीज ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, आप खुद ही समझ लेंगे कि कौन सी फील्ड से जा सकते हैं उसमें. साइबर सिक्योरिटी के लिए मैं आपको बता रहा था. साइबर सिक्योरिटी में देयर आर कोर्सेज इन साइबर सिक्योरिटी. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. Cyber security is one and cyber forensics is another. I am sure you are asking for cyber security. Cyber security के लिए there is a specific course, वो आप करते हैं तो वो इंस्टीट्यूट आपको ज़रूर, because there are lot of jobs, इसमें बहुत जॉब्स हैं, इसमें आपको वो इंस्टीट्यूट खुद ही अच्छी जगह प्लेस कर लेगी, क्योंकि इसमें हैं जॉब्स काफ़ी है, हर फील्ड में जॉब्स बहुत अच्छे हैं. एंड आर्किटेक्चर के लिए बिल्कुल स्पेशल कोर्सेज होते हैं. BArch होता है, हमारे यहाँ भी है सेज यूनिवर्सिटी में, आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं ये. बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ओके, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए बायो साइंसेस से ही आपको शुरू करना पड़ेगा. एंड जैसा कॉम्बिनेशन जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायो साइंसेस के मेल से कुछ करना पड़ेगा. सो आइदर यू डिसाइड कि आप IT में पहले कोर कोर्स कर लें और बायो साइंसेस का कोई कोर्स आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लें 6 महीने का, साल भर का, या इससे उल्टा कर लीजिए, बायो साइंसेस का कोर कोर्स कर लीजिए, BSc कर लें आप, और IT में 1 साल का डिप्लोमा या कुछ कर लें, तो दिस विल लीड यू टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं आप इसके बाद. देन आर्कियोलॉजी पे कुछ सिर्फ इंस्टीट्यूट्स ही हैं जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ आर्कियोलॉजी हैं, ये आपको वहीं से कोई कोर्स करना पड़ेगा एंड दे लीड यू टू, बिकॉज बहुत स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं आर्कियोलॉजी के लिए, वहीं से लोग तैयार होके जाते हैं. इसमें गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी आप इसमें गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं और प्राइवेट जॉब्स में भी जा सकते हैं. पिरामिड्स हैं, बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल वर्क है वर्ल्ड में जहां आप एब्जॉर्ब हो सकते हैं. एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ग्राउंड क्रू है, उनका अलग काम है. एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मेंटेनेंस वाले लोग हैं. देन देर आर फ्लाइट क्रू, जो उनको साथ में भी जाना होता है, वो फ्लाइट डेक इंजीनियर्स होते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं. एंड
देयर आर एटलीस्ट 5 और 6 काइंड्स ऑफ जॉब्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. इसमें ग्राउंड वाले भी हैं और जो आपको फ्लाइट में भी जाना पड़ सकता है, दोनों तरह के जॉब्स हैं. एंड फॉर दिस देयर आर स्पेशल इंजीनियरिंग ब्रांचेस. एरोस्पेस इंजीनियरिंग ब्रांच जिस इंस्टीट्यूट में हो, वहाँ से आप ये कोर्स करेंगे तो आपको ये जॉब्स मिल पाएंगे. Then Daksha has already asked something. Geoinformatics. Please send the material on. You have given an email ID. I'll send you a material on this. Okay, we'll note this. And then we have another Samriddhi Pagar. Archaeological career. I have already answered to this. Archaeological career के लिए मैंने आपको पहले भी बताया. Then Alina Zuberi has said only thanks. Fine. Thank you, Alina. And best jobs for engineering. This is vague. Please ask me about the specific branch. I'll tell you what are the best jobs in that branch. Engineering is vague. I told you general that these are the types of engineering which are offering good jobs. Civil, drilling engineering, chemical engineering, mechanical, motor vehicle engineering, electrical, telecom, and aerospace. They are offering high paid jobs. Sir, will actuaries be in demand? Pranjal, I am not clear with your question. What are actuaries? Please elaborate your question. Then Simi Dhiman and data analyst. Yeah, data analyst. Lot of jobs for data analyst. Please explain the job of data analyst. There is lot of data collecting. Means you can again go back to the business intelligence. You study about what is business intelligence. और ये आपको सैप की वेबसाइट पे एक लिंक मिलेगी, बिजनेस इंटेलिजेंस. SAP सैप आपने सुना होगा, उस पर आप जाके देखें, आपको बिजनेस इंटेलिजेंस में जाके पढ़िए. डेटा एनालिस्ट आर हाईली इन डिमांड. डेटा को एनालाइज करके यूजेबल बनाते हैं, एनालाइज करके वो इस जगह उससे कुछ रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं और वो रिजल्ट्स मार्केटिंग वालों के काम में आते हैं. वो रिजल्ट्स जो जिसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाना है, उसमें काम में आते हैं. बहुत सारी जगह पे काम में आते हैं वो रिजल्ट्स, बिजनेसेस के काम में आते हैं. आपकी एलेक्सा, जिन लोगों के घर पे है, एलेक्सा आपकी सारी चीजें सुन रहा है एंड इट इज पासिंग ऑन दैट इंफॉर्मेशन फॉर डेटा एनालिसिस. आप लोग बात करते हैं घर में कि डिश वॉशर लेना है, and suddenly you start seeing ads of dishwasher on your Gmail ID. ये कहाँ से होता है? वो एलेक्सा फीड कर रहा है कहीं और वो आपको ये दिखाना शुरू कर देते हैं, वहां से वो होके आना शुरू हो जाता है. दीज आर द मशीन अवेलेबल, वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस आना शुरू हो जाते हैं. ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डेटा एनालिसिस. तो इसमें तो बहुत जॉब्स हैं. यू हैव चोजन द राइट थिंग फॉर टुडे. And aviation management, Vedika Patil. Vedika, if you can, you should be seeing a number here. If you send your queries here, we'll answer it for aviation management. We do have an undergraduate aviation management degree. It's a BBA in aviation management, and we are offering good scope for the students of aviation management. हाउ इज एविएशन इंडस्ट्री? देखो, एविएशन इंडस्ट्री एज सच तो अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन पिछले कुछ समय से इंडिया में इनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी. सो यू कैन प्लान अ फ्यूचर फॉर एविएशन इंडस्ट्री. पूरी वर्ल्ड ऐसी जगह है जहां एविएशन के बिना काम होता ही नहीं है. सो दिस इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू डाई, क्योंकि आज भी एक्सीडेंट रेट के हिसाब से देखें, एफिशिएंसी ऑफ टाइम के हिसाब से देखें, तो सबसे कम एक्सीडेंट्स, सबसे कम मॉर्टेलिटीज और सबसे जल्दी और समय पे पहुंचना आज भी एविएशन इंडस्ट्री करती है. सो दिस नॉट गोइंग टू डाई. और इंडिया में इट्स अ ट्रांजिशन फेज, आगे चल के फिर अच्छा समय आएगा इसका. सो एविएशन मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ पोजीशंस ओपन. अगर इंडिया में मिलता है तो यहाँ में ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं. सो दिस अ गुड डिग्री. And all your questions will be answered at the end of the session. Sir, please guide us for computer engineering. Computer engineering में broadly आप 6 कैटेगरीज बना लीजिए. आपको अगर कोडिंग बहुत पसंद है तो आप प्रोग्रामिंग में जाके फिर then you can have 3 or 4 types of jobs there.
अगर आपको थोड़ी कम पसंद है तो यू कैन थिंक ऑफ वेब एप्लीकेशंस बनाइए, वेब एप्लीकेशन से बहुत स्कोप है। आप डेटाबेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। 6-7 ऐसे ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें आपकी पसंद के हिसाब से यू कैन चूज इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, यूआई यूएक्स डिजाइन करने पे इस समय बहुत जोर है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है लेकिन उसको कितना यूजर फ्रेंडली आप बना पा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूआई यूएक्स डज एग्जैक्टली दैट। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आज आप एनालिसिस में जा सकते हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, और यू कैन गो फॉर यूआई यूएक्स इंजीनियर अगर आप बहुत ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाना चाहते हैं तो। बट ऑल दीज जॉब्स आर वेरी वेल पेइंग जॉब्स। साइबर सिक्योरिटी का किसी ने पूछा था, दैट इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स। देन aviation we have dealt already with, and force career, how to start air force career. Okay, you have to appear for examinations. I have not touched the government exams. There are a lot of government jobs which are into administration, which are into judiciary, law, justice, in इसमें है। then R&D में है, जैसे DRDO है। देन डिफेंस सर्विसेज में बहुत सारे जॉब्स हैं, पर इनका सबका अगर आपको एक सिंगल सोर्स बताऊं तो वो है रोजगार और निर्माण पेपर, जिसको इंग्लिश वर्जन उसका आता है, इसी का एक इंग्लिश वर्जन भी आता है विच इज एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो ये हर सैटरडे को आता था पहले, अभी भी आता होगा। और इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको गवर्नमेंट के सारे जॉब्स के उसमें एड्स आते हैं, ये आपको वहां से मिल जाएगा। एयरफोर्स करियर के लिए भी आपको वहां से एड्स मिल जाएंगे। वी ग्रूम स्टूडेंट्स फॉर दैट, बट वी आर नॉट इनिशिएटिंग। वो उनका प्रोसेस बिल्कुल अलग रहता है। तो अगर आप वकील जज बनना चाहते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना चाहते हैं, यूपीएससी वगैरह में, आपको डिफेंस सर्विसेज में जाना है, किसी भी नेवी में, आर्मी में या एयरफोर्स में, तो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज से सारी जानकारी मिलती रहेगी। एंड देर आर लॉट ऑफ अदर्स। आपको डीआरडीओ है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एग्रीकल्चर में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देन देर आर लॉट ऑफ कॉलेज, कोल माइंस हैं, बहुत सारे जॉब्स उसमें आते हैं। आप देखेंगे तो आपको और भी फील्ड्स मिलेंगे। देन आई थिंक दैट इज ऑल। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस आई हैड सो फार। मैं रिवर्स ऑर्डर में गया था, हो सकता है इस तरफ कुछ और आ गए हो पीछे। why education plays an important role, why we need to learn. Okay, it's your choice. आप जरूरी नहीं है, एजुकेशन में एक फंडामेंटल एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है आपको। फॉर्मल एजुकेशन अगर आपका है, आज की तारीख में यही सही है कि अगर आपका कोई फॉर्मल एजुकेशन है, से एनी ग्रेजुएशन, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्री मिलेगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जैसे समझ लीजिए स्टीव जॉब्स ने आधी सी इंजीनियरिंग करके छोड़ दिया, बट ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन टुवर्ड्स डिजाइनिंग समथिंग, तो वैसा आप शुरू कर सकते हैं अपना स्टार्टअप। लेकिन यू शुड बी सो श्योर अबाउट योर स्टार्टअप जहां आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो सबसे अच्छा तो यह है कि आप पढ़ लें, थोड़ा अच्छी तरह पढ़ाई कर लें, और उसके बाद कोई अगर आपका पैशन है तो उसको परस्यू कर लीजिए। सो दिस शुड बी अ सेफ फुल प्रूफ ऑप्शन फॉर यू। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 4 साल के अंदर आपकी सारी पढ़ाई खत्म हो जाती है। बाय दैट टाइम यू सी द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड, दुनिया कैसी है। आप 10th 12th करके आते हैं कुछ नया कोर्स करने, यू डोंट नो द वर्ल्ड। आपको यही बताया जाता है कि देखो अच्छे रहो, सच बोलो, सब लोगों के साथ इस तरह डील करो। जब आप बाहर आते हो देखते हो ये तो सब बिल्कुल उल्टा चल रहा है यहाँ। एंड देन यू गेट टू लर्न कि देयर इज अ मिड वे, कितना कहाँ पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, दिस यू लर्न। तो एजुकेशन से बहुत सारा फायदा होता है। जब आप आके कहीं पढ़ाई करते हैं, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन सिर्फ जो आपका कोर्स होता है, उससे बियॉन्ड भी बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। एंड नासा एंड इसरो अगेन आर गवर्नमेंट जॉब्स, सो यू हैव टू स्टडी अबाउट इट। आप इनकी साइट पे जाके देखिए, वहाँ पे आई वांट टू डू कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड गो टू नासा, फाइन। फॉर दैट मिनिमम 70% आपका थ्रू आउट अगर है 10th 12th, और जो भी आप कंप्यूटर साइंस में आप बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक में भी आप 70 अगर करके आते हैं, 70% थ्रू आउट या इसके आसपास का कोई मार्क, तो
देन यू हैव गॉट वेरी गुड चांसेस टू गो इनटू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दिस। पर इनके खुद के टेस्ट हैं, उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप 1 साल पहले इनकी 6 महीने की इंटर्नशिप्स ज्वाइन कर लें आफ्टर डूइंग योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर आप वो इंटर्नशिप अच्छी तरह कर लेते हैं उनके यहाँ, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटीज कि ये आपको अगले साल हायर कर लें। And jobs and courses for chemistry. Chemistry is a very vast field. मेरा भी कुछ बैकग्राउंड रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, केमिस्ट्री में। एंड सुधीक्षा विश्वनाथ, आई वुड रिकमेंड कि आप हमारे इस नंबर पे अपने कुछ डिटेल्स देते हुए, जहां हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकें, वो आप अगर यहाँ देंगे तो वी कैन सेंड यू अ होल लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, बिकॉज द टाइम इज जस्ट अबाउट running out, and room will expire in 3 minutes. So I am supposed to answer some more questions. तो chemistry में there are jobs in inorganic chemistry, बहुत अलग तरह के jobs हैं, and there are lot of different kind of jobs in organic chemistry, और फिर इनके combinations है bio के साथ में। So those are a third kind of jobs. तो इनमें सभी में बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, हाईली पेड जॉब्स हैं, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम टू कंटिन्यू ऑन दिस। नाउ कॉर्पोरेट लॉ, इस पे मैं पिछले 2 दिन से मैं भी काफी सोच रहा हूँ कॉर्पोरेट लॉ के लिए। इसमें हैं जॉब्स, बहुत अच्छे जॉब्स हैं कॉर्पोरेट लॉ में। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड विद दैट, एंड डोंट थिंक कि लॉ का करियर इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली जो कोर्ट्स हैं, सिर्फ वहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच रिक्वायर द यूज ऑफ लॉ, और आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। इवेंचुअली कोर्ट में कुछ केसेस जाते जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस कोर्ट के बाहर भी डील होते हैं, एंड कॉर्पोरेट लॉ में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड जी योगव्रत, हाँ मैंने वो बता दी थी लास्ट, वो अब वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ चली गई है यहाँ से। अच्छा ठीक, ओके ठीक। लॉ फील्ड बहुत अच्छा है। लॉ फील्ड, दिया शाह ने पूछा है कि हाउ इज द लॉ फील्ड। इट इज गुड लाइक एनी अदर। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस, यू कैन मूव अहेड। डेटा साइंटिस्ट, ओके, यू हैव टू, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर साइंस में कोई कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें डेटा पे पर्टिकुलरली आपको कुछ एडिशनल भी चीज़ें करना पड़ेंगी, लाइक सर्टिफिकेशन फ्रॉम ओरेकल से कुछ सर्टिफिकेशन आपको करना पड़ेंगे। तो वाइल यू आर डूइंग योर बीटेक या बीई, तो कंप्यूटर साइंस के साथ में विद सर्टेन सर्टिफिकेशंस यू कैन गो फॉर अ डेटा साइंटिस्ट। पर अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं तो उनके खुद के अपने हायरिंग शेड्यूल्स रहेंगे। So I think I have answered to almost all the questions which I can see here. In which company internship you said for computer science or engineering? बहुत सारी कंपनीज देती हैं इंटर्नशिप्स, कंप्यूटर साइंस में देती हैं और इंजीनियरिंग के दूसरा, बहुत सी कंपनीज, ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज प्रोवाइड इंटर्नशिप्स। ऑलमोस्ट सारी छोटी बड़ी कंपनीज इंटर्नशिप्स देती हैं। इंटर्नशिप्स आर वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जरूर करना चाहिए। जो आपको क्लासरूम में कभी सीखने को नहीं मिलता है, वो इंटर्नशिप्स में सीखने को मिलता है। सो विद दैट आई विल कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड माय कलीग मिस्टर योगव्रत विल टेक ओवर फ्रॉम हियर and he will conclude the session. So thank you so much, and we have given you a contact detail here. If you have any queries, please feel free, हम आपको डिटेल में उस चीज को आंसर करने की कोशिश